क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हमारी बेसिक जो नीड है ना वो ये है दैट वी वांट टू बी सीन एंड अंडरस्टूड फॉर हु वी आर। कोई सुन ले, कोई हमें एक्सेप्ट कर ले हम जैसे हैं। बिहाइंड एवरी ट्रैजिक एक्सप्रेशन देयर इज एन अनमेट नीड। ही सेड आई एम ओके टू हैव इनपुट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, but I'm not okay with somebody's dignity being compromised when your truth is being shared. It's not just what, it's the how. अगर आप किसी को half hearted yes करते हो और वो full yes नहीं है, उसका प्राइस दोनों पार्टीज पे करती हैं in terms of resentment later. Boundaries are not walls, they are doors. क्योंकि एक no जो है, जब हम किसी को नो करते हैं, हम ये ध्यान रखें हम अपने आप को yes कर रहे हैं, और जब आप किसी को yes करते हो तो ये देखो कि अपने आप को नो तो नहीं कर रहे हो। Saying no doesn't make me a bad person. Saying no to the request, not to the person. Angry is not same as frustrated. It's not same as agitated. It's not same as irritated. It's not same as despair. क्या चाहिए था? डर लगा। Support चाहिए थी, नहीं मिली। Care चाहिए थी, नहीं मिली। Confidence build करने का है, confidence is the willingness to try. Rejections हैं, it's not rejection, it's redirection. Welcome to another insightful episode of Let's Talk Clarity. Today we are joined by the incredible Nancy Katyal, a certified executive presence coach, leadership development consultant, and best-selling author of Committed to Yourself. With over 2 decades of experience, Nancy has impacted over 1 million lives through her training and coaching programs across 17 countries. In this episode, we dive deep into her entrepreneur journey, how she handled rejection, and the secret of building confidence and accelerating career growth. Get ready for a powerful conversation filled with actionable insights. Let's dive in. Hello, everyone. Before we dive into today's episode, I just want to take a quick moment to say thank you. From the bottom of my heart, thank you for being part of this journey. Whether you have watched one episode or 100, dropped a comment, or shared it with a friend, your support means a lot to us. Because of you, we are now going global, recorded episode across 4 countries and 7 cities. And yes, we just hit our 100th episode. If you have been loving the content and want to see more powerful stories of career transformation and life fulfillment, do us a quick favor. Subscribe to the channel, share this podcast with at least 10 people, and drop a comment telling us which guest you'd love to see next on Let's Talk Clarity. Let's keep spreading clarity and hope, one story at a time. I'm Rakesh Mathuria, your coaching business mentor and host of the Let's Talk Clarity podcast. Now, sit back and enjoy the episode. Welcome to Let's Talk Clarity podcast, and today is very special day with a special guest, one of my friend, corporate trainer, coach, and a renowned author, Nancy Katyal. Welcome to the show. Thank you so much, Rakesh. Such a pleasure to be interacting with you. So thank you, Nancy, for coming all over from Pune and having this podcast. And let's first start our podcast with your core passion about corporate training, and let's start how it's all started and why corporate training. How you got your clarity about your career as a corporate trainer. Sure. So you are taking me back to my memory lane. So let me take you back to 2004. Okay. So I was recently married, and enjoying my married life. I had left my job then. And then my husband said, guess what, Nancy? I said, what? He said, let's move and let's go to Hyderabad. I said, yeah, sure, let's go to Hyderabad. And we moved to Hyderabad. And after a few years, my daughter was born. So I was taking care of her. But I realized that at home, when I was talking to my maid, it was all about how I interact with her. If I'm interacting good with her, she'll do good stuff at home. And then after a few years, my husband said, guess what? And I said, what? He said, let's move. Then we moved to Gurgaon. Okay. And I started my career again. And I started with M&T Group. And I realized, Rakesh, that every day people would come and talk about relationship problems. They will come and confide in me. And they used to share secrets जो आप
ऐसे किसी को नहीं बताओगे. एंड आई स्टार्टेड सीइंग अ पैटर्न कि मुझे ही आके क्यों बता रहे हैं. Okay. बट देन आई वाज डूइंग वेरी वेल इन दैट करियर एंड अब आपने गेस कर लिया होगा क्या होगा. मेरे Let's हस्बैंड ने क्या move. बोला एग्जैक्टली, लेट्स मूव. एंड वी मूव टू हैदराबाद अगेन. Okay. एंड देयर ऑल्सो ठीक है, एक और फिर से जॉब स्टार्ट करी एंड देन आई मूव टू मुंबई. एंड वहाँ पर आई वॉज वर्किंग विद आकांक्षा फाउंडेशन, ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम किया कि देखें कि क्या होता है. Okay. अब मुझे वहाँ पे मज़ा आने लगा. देन आई मूव टू अनदर स्कूल जहाँ मैं सेंटर हेड की जॉब कर रही थी. और अब आपको पता है क्या होगा. Yes. मेरे हस्बैंड ने कहा लेट्स मूव. Okay. एंड आई रियलाइज दैट वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो कि सब लोगों को जब जॉब भी छोड़ते हैं दे वर लीविंग बिकॉज ऑफ पीपल. तो मुझे लगा कि इसके पीछे कुछ साइंस होगी. Okay. आर्ट तो है, समझ में आती है, बट इसकी डेप्थ में जाना है. एंड ऑन वीकेंड्स आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सॉफ्ट स्किल्स. बैक ऑफ द माइंड ये नहीं था कि इसको करियर बनाना है, बट सीखना ज़रूरी था. okay. और फिर पुणे में आए एंड एक मोमेंट में मेरे नेबर ने जब हम शिफ्ट हुए उन्होंने मुझे आके बोला कि वेलकम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बताना. एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग माई लाइफ स्टोरी विद दैम एंड दे ओपनड अप एंड दे शेयर्ड देयर सीक्रेट्स अगेन विद मी. और मैंने एक पैटर्न देखा कि क्या हो रहा है कि सब लोग ऐसी चीज़ें हैं आप हर किसी को नहीं बताओगे. एंड देन आई डिसाइडेड कि नाउ आई स्टार्ट माई कंपनी. अब मैं फिर से जॉब में नहीं जाना चाहती. Okay. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. मैंने अपने पैम्फलेट्स भी लोगों के घर घर जाके बांटे. एंड ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो सीन पीपल शट द डोर एंड सेइंग कि क्या है ये. Okay. And then- Which year it was? इट वाज रफली 2011. 2011. Okay. फिर हमने सोसाइटी का जो क्लब हाउस होता है Mm-hmm. वहाँ पर मैंने क्लासेस शुरू की. Okay. एंड आई यूज टू चार्ज ओनली 500 रुपीज़. Okay. तो वहाँ से स्टार्ट करके टू डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स एंड बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय पीपल टू से कि क्या चल रहा है ये. Mm-hmm. To then, now it's been 13 years when I look back, Rakesh, and what a journey. Wow. So that's how I started my journey, that let's move, and let's move in a way that you can make a difference in people's life. Wow. But here, let me ask you that you always means adapted to that situation that let's move. चलो चलते हैं. And in that way, from city to city, different job to different jobs, you might have gathered so much knowledge from the moving on and with different jobs. Yes. So if I can ask you, means what you learned in your corporate that came in handy when you started your corporate own firm. Yeah. मुझे एक शेर याद आ रहा है. Okay. कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. Superb. तो वही हुआ कि कॉर्पोरेट में भी आपको, जो मैं आपको बता रही थी कि रिलेशनशिप, राइट, दैट पीपल, हमारी बेसिक जो नीड है ना वो ये है दैट वी वांट टू बी सीन एंड अंडरस्टूड फॉर हु वी आर. कोई सुन ले, कोई हमें एक्सेप्ट कर ले हम जैसे हैं. और अगर कोई हमें वो चीज़ दे देता है जो हमें चाहिए, वी फील लिबरेटेड, फ्री. तो कॉर्पोरेट में मैंने ये सीखा कि हर किसी की अगर आप नीड समझ सकें, कोई कुछ भी कर रहा है. मार्शल रोजनबर्ग बहुत अच्छा बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी ट्रैजिक एक्सप्रेशन देयर इज एन अनमेट नीड. हमें एंगर दिखता है लेकिन उसके पीछे, उस एक्सप्रेशन के पीछे एक अनमेट नीड है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो एंगर निकल रहा है. कॉर्पोरेट में जब एक बॉस एम्प्लॉय पे चीख रहा है या एम्प्लॉय जाके किसी के सामने गॉसिप कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में, कोई ये नहीं समझना चाह रहा है कि गॉसिप भी क्यों हो रही है, एक अनमेट नीड है. तो मैंने अपनी कॉर्पोरेट लर्निंग से यही सीखा राकेश, दैट बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज अ नीड. और अगर हम वो समझ जाएं कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, वो मेरे लिए कॉर्पोरेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी. और उसने मेरे रिलेशनशिप विद माई बॉस ऑल्सो चेंज्ड. Okay. कि जब बॉस मुझे फीडबैक दे रहे हैं, उसको ट्रिगर होने के बजाय एक चॉइस से आना कि आई अग्री विद दिस, कैन आई टेल यू मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ पर. दैट शिफ्टेड द रिलेशनशिप ऑल्सो इन माई कॉर्पोरेट लाइफ. Wow. This is super important, that understanding boss version or मेरा version, मेरी needs. So here let's dive deep into this topic, because boss subordinate relationship एक ऐसा relationship है जैसे Tom and Jerry जैसा. You have to be there and you are always in your tussle. So what helped you in this journey to support boss relationship and now in corporate training, means how you deal with these kind of scenario जब boss and subordinate relationship थोड़ा tight है, but इसको how you maneuver those things. I'm so loving your question. अब ज़्यादातर जब मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ तो ज़्यादातर पीपल वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, आप
सीनियर लीडर्स की ट्रेनिंग करी है. Why are you training us? हम तो कर ही रहे हैं, you know. These people also need training. Okay. And when I go back and ask them, what shift do you want? One thing is common, that they should understand our sides of the story also. We are understanding their side, but what would it take for them to understand my side? मैं कहाँ से आ रहा हूँ? And I've said that, have you ever shared your side of the story? So there is this fear also. If I share my truth, I will not belong. अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो बिलोंग नहीं कर सकते. लेकिन इधर और के बजाय शिफ्ट में लोगों को बोलना कि एंड भी हो सकता है. यू कैन बी ऑथेंटिक एंड बिलोंग, यू कैन बी ऑनेस्ट एंड बिलोंग. बट एंट्री पॉइंट देखना कि अपने ट्रुथ को कैसे रखना है. दैट्स वेयर आई कम इन टू से हाउ डू यू हैव करेजियस कॉन्वर्सेशन. नॉट ओनली व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से. मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ इस पर. मैंने जब अपने कंपनी स्टार्ट करने से पहले आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब. सो फर्स्ट जॉब थी मेरी. And my boss said, आप बैठिए, आपको बताते हैं, you know, we are very free, you share whatever you like in the organization. हम inputs encourage करते हैं. और मैंने उसको literally ले लिया. तो next हमारी जो meeting थी उसमें somebody was sharing the idea. young थी मैं, in my early 20s. तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब वो बता रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ध्यान से भी बोलना है. But I just वो फिल्टर करके सुनते हैं ना. तो किसी ने कोई आइडिया प्रेजेंट किया मीटिंग में, and I said, I don't agree with this idea. ऐसे टोन थी मेरी. आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क. खैर मीटिंग खत्म हुई. आई केम आउटसाइड एंड माय लीडर सेड, नैंसी, आई वुड लाइक टू मीट यू. एंड आई थॉट, वाह, व्हाट अ प्राउड मोमेंट, यू नो. द मीटिंग के जस्ट बाद में, यस, करेक्ट. एंड ही विल अप्रिशिएट दैट, वाओ, you know, you followed my advice, share inputs, whatever, if there is disagreement. He said, what just happened? I said, sir, you told me I can share anything I like, and my inputs are welcome, and that's what I did. He said, I'm okay to have inputs in the organization, but I'm not okay with somebody's dignity being compromised when your truth is being shared. It's not just what, it's the how. And it stayed with me, Rakesh. Of course, there are moments when I mess up, but then just catching myself and saying, hey, I need to go back and apologize. That stayed with me. It's not just the what, it's the how. How, yes. Yeah. And the same goes with in the relationship. Even spouse, husband, wife relationship, or even in siblings. Absolutely. It is always about how we say our things with authenticity and with proper words, maybe. Absolutely. So let's move on and let's discuss about if someone is having very toxic boss and it is very difficult to work in that environment. So how you will guide someone, a new working professional or some working professional who are already there for around 10 years. So because since I am also doing coaching, a lot of people come with this same problem, that 70% maybe that boss and वो equation बैठ नहीं रही है and he or she is toxic. So let's dive in that point. It is very important. Absolutely. I'm so glad you're asking this. So first thing would be for people to understand, what do you mean by toxic? Now, I have seen that these words are thrown left, right, center. When I hear the word toxic, what do I really mean? Is it that my inputs are not entertained? I cannot be myself? Every time I share my idea in a meeting, I'm ridiculed. My ideas are not welcome. Then, of course, it's a warning sign. Another warning sign is this person only like this with you, or they are with majority of the people? If they're only with you, then it's something that we also need to see how I have co-created that. But if that person is doing with all the team members, then of course you need to have a courageous conversation. But the most important question that we need to ask ourselves, what was that starting point when I started allowing this to happen to me? What's stopping you to have that conversation with the person? Are you worried about your job at stake? Are you worried about, I can allow this person, but then there will be repercussions, this person will treat me in a certain way? So I think it boils down to us, Rakesh. I mean, we can blame the person, but sometimes we only need to have the conversation to say what is not okay with me. Because people would do certain things with you when you allow that. So bigger question is, मैंने क्यों allow किया है? What stopped me from creating a boundary where I say, this is not okay?
This is not okay. Yes, this is super powerful. And when you were sharing, I was going into my career also. Let me share that also. It was 2020, just before COVID, and a new boss came into my organization. Now I'm not in the organization, but in 2020, new boss came, and we met for around a week, and then that lockdown happened, and then we were only talking on phone. So I have not met that person for maybe 3-4 days, and then I have not met. And then one day he just called me, Rakesh, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है. And I was like, मैं कहा, sir, hold on. Give me the detail which work is not being done. कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है. Don't say me general things. These are my words. Don't say me these general things. Give me the detail which work is not being done. Yes. And that was the day. उसके बाद उनके साथ 3 साल काम किया. I set the boundary on day 1. Means it was day 4 or 5, but I set the boundary on that day कि सर आप मेरे को क्लियर बताओ क्या काम नहीं हो रहा है. And from that day onwards, 3 साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. For others, there were incidents because they allowed on that day 1 कि कुछ काम नहीं हो रहा है, and they accepted that. So I totally related with your setting the boundaries. I'm so glad you shared this, Rakesh. And to add to that, whenever somebody is toxic, let's say, if we put them in that category, we also need to understand that when I was telling you about that, what is important to them? They also have a need that is not getting met. And unfortunately, the strategies that they are using to approach us are tragic. And what can we do to really understand and have a conversation with this person that, sir, I want to contribute to you. And I also want to contribute in a way that I like. How can we come at a middle ground? Because we are in this organization not against each other, but with each other. With each other. How do we do that? And of course, it requires us to build our courage muscle. Wow. This is super important that we are together in the organization with a common goal. Yes. Yeah. And so let's take this journey forward, and I'm really going into deep into it. And so let's discuss about, we have talked about the boundaries. So how one can set boundaries and how one can start, because when I was in corporate, I started in 2005. So I didn't know about what is boundaries, वो होती क्या है, दीवारें, या how to do it. And later, means last 4-5 years back, I started to understand, okay, एक तो boundaries भी होती हैं, फिर healthy भी होती है. So how to start with that process? Correct. Same thing. Boundaries are not walls, they are doors. Doors, okay. Wall का मतलब ये है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर लोग आपको एक दीवार की तरह देखते हैं कि इनके साथ सिर टकराने जैसा है, बात नहीं होगी, then that's a red alert for us. Okay. लेकिन बाउंड्रीज का मतलब है, मैं उसको लिमिटेशंस की तरह देखती हूँ कि मेरी एक लिमिट है, आज पूरी हो गई है. आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू ऑफर माई बेस्ट सेल्फ टू यू. तो अभी कि मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ, खुलेगा ये दरवाजा, ये दीवार नहीं है, ये खुलेगी, लेकिन आई विल फिल माई कप. मैं अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी को हाफ हार्टेड येस करते हो और वो फुल येस नहीं है, उसका प्राइस दोनों पार्टीज पे करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिजेंटमेंट लेटर. आपने भी लाइफ में कभी किसी को हाँ किया होगा आधे पचाधे मन से, उसकी कॉस्ट हमने अपने लिए भी, अपने साथ अपने आप को ब्लेम करके कि क्यों किया जब नहीं करना चाहते थे. सो आई थिंक बाउंड्रीज एक सेल्फ केयर का मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि मैंने अपनी एक लिमिट रीच कर ली है. अगर मैंने अपनी लिमिट से, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप यहाँ तक भरे हुए हो और अगर आप और करोगे तो उल्टी ही हो जाएगी और उससे काम खराब होगा. Yes. उतनी अवेयरनेस रखना कि हे, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू यू, आई कैन डू इट टुमारो. इफ आई डू इट टुडे, आई मे नॉट डू इट टू द बेस्ट कैपेसिटी दैट आई वुड लाइक, एंड इट विल इम्पैक्ट आवर क्वालिटी एंड इट मे इम्पैक्ट आवर रिलेशनशिप ऑल्सो. और बहुत सारे लोग हर वक्त हाफ हार्टेड येस कर रहे हैं. तो मैं ये कहती हूँ कि एक नो जो है, जब हम किसी को नो करते हैं, हम ये ध्यान रखें हम अपने आप को येस कर रहे हैं. और जब आप किसी को येस करते हो तो ये देखो कि अपने आप को नो तो नहीं कर रहे हो. Wow, this is super important that if you are saying no to someone, it is yes to me. Yeah. Wow, wow. Yeah. And so चलो no की ही बात कर लेते हैं, because it is very difficult to say no. Yeah. It is very difficult to accept no. Yeah.
And even if it is not, if it is no from both sides, then it is more difficult. So how one can start accepting and saying no? ब्यूटिफुल. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी को नो कर रहे हो तो आप अपना रिलेशनशिप नो के साथ देखो सबसे पहले. तो वो तो कहते हैं ना डीपर लेयर में जाने का. कुछ Yes, लोग yes. रिलेशनशिप मतलब कि अगर मैं नो करती हूँ किसी को तो मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ. इफ़ आई से नो आई विल नॉट बी लाइकेबल. एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में इंजंक्शंस. Injunctions. इंजंक्शंस में बहुत सारी इंजंक्शंस हैं. जैसे कि एक है डोंट बी यू. अगर हमें कभी भी बचपन में एक मैसेज मिला है हमारी अथॉरिटी फिगर से, जैसे वो होता है ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो उनके कितने नंबर आए, या ऐसे मत करो तो तुम एक्सेप्ट नहीं होगे. तो कहीं ना कहीं शायद एक ये मैसेज भी आता है कि डोंट बी इम्पोर्टेंट, दूसरे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये इंजंक्शंस अपनी लाइफ में देखने के और भी बहुत सारे इंजंक्शंस होते हैं. डोंट थिंक कि जैसे बोला गया ना वैसे करो, दूसरे ने जैसे कहा है ना वैसे करो. तो अपना रिश्ता देखना कि मेरा नो के साथ रिश्ता कैसा है. क्या मुझे नो करने में मुश्किल इसलिए होती है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइकेबल. अगर आप हमेशा प्लीजिंग मोड में रहेंगे तो एक वॉर बाहर तो नहीं अपने अंदर शुरू कर देंगे. दे से दैट सबसे ज़्यादा पीस बनाने के लिए बाहर, अगर आप अंदर वॉर शुरू कर देते हो, वो बाद में जिसके साथ आपने पीस बनाया उसके साथ भी रिजल्ट होता है वॉर के अंदर. एंड टू आंसर द क्वेश्चन कि पहले जब अपना रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि saying no doesn't make me a bad person. And also किस तरह से नो किया जाए. मैं 3 चीज़ें बोलती हूँ लोगों को. सबसे पहले जब आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कीजिए. क्योंकि हमें बचपन से, आपने देखा होगा बच्चे को बोलो डोंट गो देयर, वो वहीं पे जाते हैं. नो तो वहीं टैंट्रम वहीं लेट जाते हैं. तो आई थिंक नो के साथ हमारा रिश्ता अलग सा है बचपन से. तो फर्स्ट चीज़ है कि जब आपको कोई कुछ रिक्वेस्ट करता है उनकी एक्नॉलेज कीजिए. लेट्स से आप मुझे बोलते हो कि नैन्सी शाम को क्या कर रहे हो, मिलते हैं. अब मैंने बोल दिया हाँ नथिंग. तो ये भी रियलाइज करना अगर मुंह से निकल गया है वर्ड, आई कैन से दैट हे राकेश आई रियलाइज आई सेड नो, आई जस्ट सेड नथिंग, आपके साथ मिलना चाहती हूँ मैं, तो मैंने एक्नॉलेज किया आपकी रिक्वेस्ट. या आई वॉन्ट टू मीट यू. सेकेंड, अब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं आज नहीं मिलना चाहती. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू डू. सेइंग नो टू द रिक्वेस्ट, नॉट टू द पर्सन. मैं नहीं कहूँ मुझे आपके साथ नहीं जाना राकेश, मेरे साथ नहीं जाना. सो यू से नो टू द रिक्वेस्ट कि राकेश मेरे लिए कॉफ़ी पे जाना आज मुश्किल है, बाद में मिलें क्या. एंड थर्ड इज, अगर आपके लिए अमिताभ बच्चन ने कहा है नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन जो लोग अपनी नो की करेज मसल बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है कि नो और सुनने वाले के लिए मुश्किल है. तो वहाँ पे थर्ड बिकॉज आई हैव बीन मीनिंग टू टेक टाइम फॉर माई सेल्फ. बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ बट मैंने किया नहीं है राकेश. एंड आई रियली वैल्यू आवर फ्रेंडशिप राकेश. तो मैं हाफ हार्टेडली आके करूँ और आई एम नॉट प्रेजेंट टू यू, वो नाइंसाफी होगी हमारी फ्रेंडशिप के लिए. एंड देन चेकिंग विद द पर्सन, वुड दैट बी ओके इफ आई से नो टू यू टुडे. Wow, that fourth one is very deep. Yeah, checking with the person. And let me share my story on the no, because right from the childhood I was the pleasing person, which you have just shared. Yes, I want to be seen, and then I say yes to everyone. And then later half I started to see no. अगर कोई WhatsApp पे मैसेज देख लिया, रिप्लाई भी नहीं कर रहा, इट वॉज ऑल्सो पिंचिंग. कहीं ना कहीं लगता है अरे यार मैसेज देख तो लिया, वो 1 टिक 2 टिक ब्लू टिक सब आ गए हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है. एंड देन दैट नो प्लेज समटाइम्स, वो अंदर की वॉर स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, वो इट स्टार्टेड टू प्ले. बट लेट मी शेयर दैट ड्यू टू दिस पॉडकास्ट, फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम रनिंग दिस पॉडकास्ट. मैं इतने लोगों को अप्रोच किया फॉर द पॉडकास्ट एज अ गेस्ट, और बहुत सारे लोगों ने तो कभी मैसेज का जवाब ही नहीं दिया. मतलब येस नो तो छोड़ ही दो. सो आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट, द नो इज़ नॉट फॉर राकेश, इट इज़ फॉर द पॉडकास्ट. एब्सोल्युटली. एंड फॉर दैट मंथ या दैट ईयर द डे. लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद मैंने फिर अप्रोच किया, एंड आई हैव रिकॉर्डेड अ ब्यूटिफुल पॉडकास्ट विद दैम. So it is also important that converting no to yes is also important, and that no may be for that particular day, for that particular offer, for that particular what you can say favor I was asking. So that is very important. And then
I understood that so many people say no in a very beautiful way. मेरे को भी मजा आ गया कि यार ये तो yes से भी अच्छा लग रहा है मेरे को. So like that I started to learn, and here let me pause it, close this no, that it is a process and it is very deep process. बहुत कभी कभी लगता भी था, and then it is long process, मतलब उसको करते जाना है. आई लव वॉट यू सेड कि नो को देखना है कि वो नो मेरे आइडिया को नो है, एज अ पर्सन मुझे नो नहीं है. एंड आई थिंक बहुत सारे टाइम ना हम राकेश अपनी आइडेंटिटी आउटकम से अटैच कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी रिक्वेस्ट को हाँ नहीं किया, आई फेल्ड एज अ पर्सन. नो, रिक्वेस्ट अभी एक्नॉलेज नहीं हुई है. एंड अगर आपको वो सच में और चाहिए तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं डॉगिंग फॉर योर नीड्स. कि अगर आपको सच में चाहिए, जैसे डॉग्स कैसे होते हैं, अगर उनको ट्रीट चाहिए वो आपके पास आएंगे और आप उनको बोलते रहो, दिल अगेन कम एंड यू नो वैग देयर टेल एंड से नहीं चाहिए, एंड यू टेल देम, बट देन वो उनकी क्यूटनेस और जिस आप सब कैसे कहते हैं ना कि कैसे नो करी जाती है, वो हाँ ऐसे बड़ा प्यारा सा पपी सा फेस बना के बैठ जाते हैं. तो आई थिंक ये भी है कि आपको ये देखना कि एक बार नो जो हुई है उसका मतलब ये नहीं है वो फाइनल नो है. अगर नो सुनी है तो एक बार दोबारा से ट्राई करके फिर से दोबारा, और अपनी नीड्स को रखना और दोनों को अलाइन करके वो येस में कन्वर्ट हो सकती है. अ नो इज नॉट अ फाइनल नो. अ नो कैन बी a yes later. Wow, this is super powerful and amazing concept. Dogging for your needs. So Nancy, let's take the journey forward. No के बारे में बात हो गई, and so no से related ही let's discuss about the failures, because you have been to this your career journey from last 2 decades around. So बहुत सारे failures आए होंगे, and you must be having some setbacks, and corporate journey के अलावा entrepreneur journey में ज़्यादा setbacks आए होंगे. So how you dealt with them, and how one can accept them and overcome them and take it further. Yeah, I say that I've failed multiple times and I'm proud of that. And failure को कैसे लिया जाता है? Like for example, आप हमारे करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जो फीडबैक फॉर्म है ट्रेनिंग में, Yes. इट डिसाइड्स माई करियर एवरी टाइम. Every तो जब आप खड़े होते हो, आप एंक्शियस भी हो रहे होते हो कि दिस पर्सन कैन डिसाइड माई करियर टुडे. सो आई एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई रिमेंबर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस में एक ट्रेनिंग कर रही थी आज से 10-12 साल पहले. नया करियर स्टार्ट किया था, सीनियर लीडर्स के साथ में काम कर रही थी. और लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर हो तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए. तो एक जेंटलमैन हु वाज नॉट सो जेंटल विद मी इन द ट्रेनिंग, वो बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, ये तो सुन ज्ञान की बातें हैं, ये ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा. उस मोमेंट पे मैंने पॉज लिया और मैंने बोला कि वुड यू शेयर एन एग्जाम्पल जहाँ आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क करेगी. एंड ही टोल्ड मी, आई एम नॉट द ट्रेनर, यू आर द ट्रेनर. एंड आई नोटिस्ड मेरी इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, and I noticed frown on my face, and maybe I did some gesture which I shouldn't have done. And later in the break, when I gathered myself, I realized that something happened within me in that moment. I felt rejected, but there was, कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान जिसने मुझे आके एक चीज़ बोली उस मोमेंट पे, और वो मेरे लिए लाइफ टर्निंग मोमेंट था. उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे मोमेंट पे आप कैसे शो अप होते हो ग्रेस के साथ, वो एक टर्निंग पॉइंट है. कोई आपको आके, वो कहते हैं 3 तरह के लोग होते हैं. एक सैंडलवुड की तरह रह सकते हो कि सैंडलवुड के ऊपर कोई अगर कीचड़ भी फेंक देगा ना, सैंडल का काम क्या है, दूसरों को फ्रेग्रेंस ही देना. या आप हो सकते हो मिरर, कि कोई मुझसे जैसे बात कर रहा है आपको वही दिखेगा. इस ट्रेनिंग रूम में अगर उन्होंने किया, आपने फ्राउन कर दिया, तो आप उस मोमेंट तो उनको मिरर की तरह है. तीसरा है थॉर्नी बुश, आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया, अब आपको मैं और कांटे चुभाऊंगी. हर मोमेंट पे आपके पास 3 चॉइसेस हैं. अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, सैंडलवुड का काम ये नहीं है कि बदतमीजी सहना. सैंडलवुड का काम ये है कि उस मोमेंट पे अगर किसी ने कुछ बोला भी है, मैं उस फ्रेग्रेंस से आपको बात, अपने ट्रुथ को रख सकती हूँ. और मिरर का काम जैसे मैंने आपको बताया, तो उस मोमेंट पे जब मैंने गैदर किया और मेरे लिए इतना ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट था, आई वेंट इनसाइड द ट्रेनिंग एंड आई वाज अ डिफरेंट पर्सन. दिस पर्सन स्टिल वाज रिजेक्टिंग माय आइडियाज इन द रूम, नॉट अग्रीइंग विद देम, बट आई आस्क्ड हिम, सर व्हाट कैन आई डू in this training that will make this training experience more meaningful for you? And something shifted for him also when I asked that, because we are all aware ना, हमारे अंदर एक GPS लगा हुआ है जो हमें बताता रहता है. और GPS में क्या है, अगर आप जाते हो रोड पे राकेश, अगर आप गलत टर्न ले लो तो GPS
फिर से रीराउट करता है ना आपको, और आप बोलता है कि ये रास्ता ले सकते हो। तो आई थिंक वो जो इंसान थे मेरे लिए जीपीएस बन के आया, मुझे समझ में आया कि मैं रीराउट कर सकती हूँ, दूसरा डिटूर लेके जा सकती हूँ। और वो जो इंसान थे उन्होंने ट्रेनिंग के बाद जो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, तो वो फेलियर की बजाय एक लर्निंग आई। आई थिंक कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे को लाइफ में हमेशा ये बताया ना, कॉलेज में है तो पास होना है, फिर तुम्हें 10th के बाद पास होना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर जॉब लेनी है तो इंटरव्यू पास करना है। बट फेलियर की तो ट्रेनिंग दी ही नहीं कि इंटरव्यू जब पास ना हो तो कैसे उसको एक्सेप्ट करें। तो आई थिंक वो लर्निंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैं बहुत सारे, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड शेयर सो मेनी स्टोरीज राकेश, बट आई एम सो ग्लैड आप पूछ रहे हो ये चीज़। वो 3 चीज़ें मेरे लिए एंकर का काम करती हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं अपने एंकर से हट रही हूँ, हाउ कैन आई बी दैट सैंडलवुड। सैंडलवुड, वाओ दैट्स सुपर पावरफुल। एंड मेरे जीपीएस में सेट हो गया वो सैंडलवुड। आई एम सो ग्लैड। बट यहाँ पे एक बहुत डीप क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जी। बिकॉज you are able to hear that emotions are going up, and you are aware that something is happening inside, and you are aware that कुछ GPS है और जो reroute हो रहा है and all those things. But most of the life means I don't have any GPS. वो GPS था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था अंदर हो क्या रहा है, because I was in the rut, और एक रूटीन रोबोट के जैसे I was living my life, और वो हो रहा था. So what is happening inside was not even heard, seen, feel, जो भी है. So how you develop those skills? सच अ पावरफुल क्वेश्चन। मैं आपको स्कूल डेज में आपको बैक लेके जाती हूँ कि हमें क्यों नहीं अवेयरनेस होती हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। आपने देखा है कि स्कूल में जब जाते थे और हम कहते थे कि मैम वॉशरूम जाना है, अभी नहीं जा सकते, मैंने सुना मेरी बॉडी कह रही है और इतनी जोर से मुझे जाना है, बट मुझे रोक दिया गया, अभी नहीं जाना, ब्रेक के बाद। तो और अगर आपको नींद आ रही है तो क्लास में आपको होता था कि नींद क्यों आ रही है, जाओ मुंह धो के आओ, मेरी बॉडी टायर्ड फील कर रही है। तो मेरी बॉडी मेरे को बचपन में हर वक्त बताती थी, मुझे क्लास में उसको एक्नॉलेज नहीं करने दिया गया। जब मुझे भूख लगती थी, आपने खाया है वो टिफिन थोड़ा सा हल्का सा पीछे खोल के साइड पे? Yes. क्योंकि हमें भूख लग रही है, बॉडी बता रही है। लेकिन हमारे लंच ब्रेक सेट थे, खाना तभी खाना है जब लंच ब्रेक है, लेकिन मुझे उस टाइम भूख लगी है। तो जब हमारी बॉडी को भूख लगती है, भूख को मैं एक मेटाफर की तरह यूज कर रही हूँ, हमारी बॉडी हमें बताती है मुझे क्या चाहिए। लेकिन बचपन से ही उसको नमिंग मैकेनिज्म में किया गया, बंद कर दो, अभी टाइम नहीं है, रोना आ रहा है, डोंट क्राई। सुना होगा आपने, आप लोगों मेन को तो बहुत ही ज्यादा बोलता है, लड़के की तरह, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो आई थिंक राकेश वही चीज है कि अवेयरनेस शुरू से थी, उसको हमने नम करते 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 इतना नम कर दिया है कि हम अवेयर ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और वही है, फिर से वापस जाना है। जीपीएस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, डालते हैं ना हम डेस्टिनेशन, और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे लिए अपने साथ बैठना और नोटिस करना। जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ कैसे ऊपर जाती है कई बार किस क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। तो वो अवेयरनेस रखना और ये कहना कि मेरी बॉडी सेंसेशंस, सबसे पहला स्टेप ये है। आपकी बॉडी पहला सिग्नल देती है। जब आप रोलर कोस्टर राइड पे जाते हो तो हार्ट बीट रेट ऊपर होती है, धप 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 धप। किसी के लिए वो एक्साइटमेंट वाली है, किसी के लिए एंग्जाइटी वाली है। तो वही है, टू स्टार्ट लिसनिंग टू बॉडी सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप। उस बच्चे को जो स्कूल में नहीं सुना गया, वो बच्चा शायद आपके अंदर बैठा है और उसको जगाने की जरूरत है। Wow, this is super powerful that we should go back and listen to that child, that 13-year-old child, which Yes. was numbed by some pressure, some societal. So, and so let's take this very deep and slow, one by one. Sure. What may be the first step? The first step is to start listening to your body sensations. उसको बोलते हैं बॉडी स्कैन। Body scan. जैसे कि अगर सिर से शुरुआत करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, हम बोलते हैं टुडे माई हेड इज हैवी, Heavy, yes. या फिर हम अगर नीचे थोड़ा सा आए, हम क्लियर थ्रोट भी करते हैं कभी कभी कॉन्वर्सेशंस में। कभी चोक फील होता है, बोला भी होगा, आई एम फीलिंग चोक्ड, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। या कई बार आईज भारी लगती हैं, बोला होगा कभी कभी, यू नो आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। दैट्स योर बॉडी वे ऑफ कन्वेइंग। लेकिन उस मोमेंट पे पॉज लेना और अपनी बॉडी से लिटरली ऐसे पूछना, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट मैसेज यू हैव फॉर मी। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। What message have for You me? have for me. You have for me. कि Yes. क्या मैसेज लेके आए हो फीलिंग। आपकी फीलिंग पहले बॉडी में आती है ना। आपने देखा होगा, आप जब सड़क पे जा रहे होते हो और अगर आपको डॉग को देखते हो, आप गेज करते हो ना उसके देख के कि
सेफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी बॉडी को देख के। और फिर आप डिसाइड करते हो कि गोइंग, यू नो, योर बॉडी गिव्स यू अ सिग्नल कि अभी सेफ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 90% ऑफ द टाइम योर बॉडी गिव्स यू द राइट सिग्नल, है ना। 10% अगर माइंड बहुत क्लटर है तो नहीं होगा। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि बॉडी स्कैन करना, कौन सा पार्ट हैवी फील हो रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइटनेस है, कहाँ पर, जैसे कई लोग बोलते हैं ना हाथ ठंडे हो गए, ये हम ऐसे बोल देते हैं, बट हाथ ठंडे हो गए, क्या चल रहा है। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड है अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को इंक्रीज करना। लोगों को क्या पता है, मैड, सैड, बैड, ग्लैड, अफ्रेड, स्कैर्ड, इसके अलावा 3000 से ज्यादा वर्ड्स हैं इमोशंस के। तो अपनी इमोशनल वोकैबुलरी की, एंग्री इज नॉट सेम एज फ्रस्ट्रेटेड, इट्स नॉट सेम एज एजिटेटेड, इट्स नॉट सेम एज इरिटेटेड, इट्स नॉट सेम एज डिस्पेयर। तो देखिए मैंने अभी जो फीलिंग्स की रेंज बताई है आपको, इट्स नॉट हैप्पी, इट्स जॉय, इट्स नॉट जॉय, इट्स ग्लैड, क्या है आपके लिए। तो वो अवेयरनेस। और कहते हैं कि इफ यू कैन नेम इट यू कैन बिकम फ्रेंड्स विद इट। जब पता चलेगा कि क्या हो रहा है तो तभी दोस्ती करेंगे ना। तो these are the 3 steps that I would say. Wow, this is super powerful, and increasing our vocabulary of feelings, emotions. Yes. That is very important. And यहाँ पे मैं मतलब I was thinking कि ये सब स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं सिखाया गया? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें बदल रही हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद स्कूल्स नाउ, तो अवेयरनेस आ रही है। और पहला स्टेप यही है कि हम भी एज पेरेंट्स, अगर स्कूल नहीं सिखा रहा है तो घर पे एक फीलिंग चार्ट रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा दीजिए या बच्चे की स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, और एक कॉन्वर्सेशन होना, व्हाट डू यू फील राइट नाउ, बच्चे से पूछना। नहीं, आप 4 इमोशंस, हैप्पी, सैड, बैड, ग्लैड के अलावा और क्या फील कर रहे हो। कॉन्वर्सेशंस डाइनिंग टेबल पे होना कि आज का दिन कैसा रहा, पूछते हैं ना हम, कैसा रहा। तो वो फीलिंग के अगर लेवल पे पहुंचते हैं, अगर बच्चा बोल रहा है कि टुडे आई वाज स्कैर्ड, तो आप उसकी नीड अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हो कि क्या चाहिए था कि डर लगा, सपोर्ट चाहिए थी नहीं मिली, केयर चाहिए थी नहीं मिली। तो बच्चे की और कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी कि व्हेन आई एम अवेयर अबाउट माई फीलिंग्स आई कैन हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन विद समवन टू से हे आई एम फीलिंग स्कैर्ड बिकॉज आई नीड सम सपोर्ट हियर। तो उनका रिलेशनशिप, एंड दे कैन हैव बेटर कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। हमें आदत तो यही नहीं पता हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। यस, एंड ये तो हो गई स्कूल कॉलेज की बात, घर की बात, बट हाउ यू डील दिस इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? हाँ, मतलब एक हमें ना नीड्स के साथ, आई एम सो ग्लैड आप कॉर्पोरेट पे बोल रहे हो। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है कि मोस्टली मैसेज है, मैं सब कॉर्पोरेट्स को जर्नलाइज नहीं करना चाहती, बट मोस्टली मैंने देखा है कि बोला जाता है इमोशंस का बिजनेस में जरूरत नहीं है। यू कीप योर इमोशंस बैक आउटसाइड, एज इफ कि इमोशंस सच में बॉडी से निकल के हम बाहर रख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, बट हमें यही कहा जाता है इमोशंस बाहर छोड़ के आओ। ये लाइन भी बोली गई है, लेकिन कैसे छोड़ के आते हैं? जब एक लीडर गुस्सा होता है उसको इमोशन ही तो कहेंगे ना। तो आप फिर लॉजिकली बात करें कि टारगेट्स अचीव नहीं हुए, आपकी क्यों टेम्पो ऊपर नीचे हो रही है, वो तो गुस्सा है ना, या इरिटेशन है ना, या फ्रस्ट्रेशन है। तो इमोशंस तो बिजनेस में आती हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब तक हम इमोशंस को दबाते रहेंगे वो वापस आती रहेंगी। आपने देखा होगा मॉल में कई बार बच्चे ऐसे मम्मी का दुपट्टा खींचते रहते हैं, और वो खींचते रहते हैं, और वो कब तक खींचते रहते हैं, जब तक अटेंशन नहीं मिलती। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये हो रहा है कि लोग वो दुपट्टा या शर्ट अपने अंदर खींच रहे हैं आपको बताने के लिए कि हे हियर मी आउट। और वो ये हो रहा है कि जब एक मैसेज ही दे दिया गया हमें कि हमारी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे लगता है बताने का क्या फायदा। आपने किसी को 24 आवर्स में जरूर पूछा होगा हाउ आर यू, आपको ज्यादातर जवाब क्या मिला? ओह आई एम ग्रेट, और फ्लैबरगास्टेड, ओह माय गॉड लाइफ इज ऑसम, मे बी, बट इज इट ऑल द टाइम? नो। तो आई थिंक एक ये भी है कि आई एम नॉट समबडी हु बिलीव्स इन दिस फेक एफर्मेशंस, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। सो आई फील कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्पेस मिले लोगों को जहाँ पे वो सिर्फ इतना बोल सकें कि आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू आफ्टर सम टाइम, आई एम लिटिल caught up with my emotion right now, बजाय कि दोनों लोग, it's almost like दोनों पेंट की बाल्टी लेके आए। अब आप पेंट की बाल्टी फेंकेंगे तो दोनों ही मैसी हो जाएंगे ना। अभी होली गई है तो होली की तरह। करेक्ट। तो आई थिंक वही है कि आई एम सो ग्लैड आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कॉर्पोरेट्स में इमोशंस को अगर एम्ब्रेस करेंगे तो बेटर कॉन्वर्सेशंस होंगी। और अगर आप वर्ल्ड अराउंड भी देखिए, हम रोड रेज की बात करते हैं और ये सब करते हैं, वो सप्रेस्ड इमोशन है, और जब वो इतनी पहुंच जाती है तो आउटलेट क्या होगा? बाहर ही निकलेगा ना। And now that corporates are working on it, and the change is happening.
you might be also experiencing that people are asking कि emotional intelligence की training कराओ, Yes. and then लोगों को coaching दो and lot many things. So let's take this journey forward, and this is a very beautiful question I asked to my all guests. Yes. कि, in this year 2025, if someone is just graduating, he or she want to become a corporate trainer, Right. so what is the path for him or her? इसके अंदर ये अवेयरनेस है कि अपने से जब पर्सनल सक्सेस से ज़्यादा आप दूसरे की लाइफ में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो पहले तो ये समझना है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अगर आपको लगता है कि ग्लैम और फेम और उसके लिए करना है देन यू रियली नीड टू रीथिंक. तो पहला स्टेप ये है कि डू यू रियली लाइक गोइंग बियॉन्ड योर सेल्फ एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समबडी एल्स. तो वो तो पहला स्टेप है. दूसरा, क्या आप अपनी इमोशंस को बे पे रख के दूसरे को सुनने की कैपेबिलिटी है? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको आके बोलेंगे आई डोंट अग्री विद दैट. तो कितना आप रिसोर्स्ड हो उस मोमेंट पे टू लिसन टू दैट पर्सन. तीसरा बात यह है कि आपको आपका एनवायरनमेंट फीडबैक देता है. जब मैं आपको भी अपना बता रही थी कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट्स वेरी इजी टू टॉक टू यू, तभी मुझे लगा कि अच्छा कोचिंग इज वन थिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर. You are getting the science. Science. Yes. या फ्रॉम द एनवायरनमेंट की अगर आपको कोई आके बोलता है, आपसे लोग बहुत एडवाइस लेते हैं या आपको बोलते हैं वो पावरफुल स्टेटमेंट थी, वो फिर से बोलो ना वो लाइन. तो आई थिंक दीज आर इंडिकेटर्स कि आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है. कि अगर आपको लोग सुनते हैं जब आप बोलते हो तो दैट्स अ बिगर इंडिकेटर. That was good one. And so let's take the journey forward, your career journey. And 2 years back, you published your first book. Yes. And so how that has happened and how it came out. Yes. Sure. In our lives, there is a point when a message comes from your system, enough is enough. Okay. And I was wanting to write that story, लेकिन मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, अंदर जजमेंट्स आती हैं. और आप जब सोसाइटी में जाते हो एंड यू आस्क पीपल दैट हे माई बुक इज़ रेडी, कुड यू गाइड मी, एंड द बेस्ट ऑफ पीपल इफ दे टेल यू ऑथर्स दैट there are already so many books, Nancy, you are first time author, best get it self published, why go the traditional route? And if you hear that message enough, sometimes you start to believe it. But then you ask yourself why writing a book is important. And I think for me it was that there are certain moments and nuggets that I received from my life and that helped me to overcome the self doubt, the stuckness in life. And I said that this story is not just mine, it needs to go out in the world, and if it can impact even one life, my job is done. And that's how the book came into life, that commit to yourself. जिंदगी में सबसे ज़्यादा important रिश्ता हस्बैंड के साथ नहीं या बॉस के साथ नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका अपने साथ जैसा रिश्ता है ना, वो बाहर के रिश्तों को भी उस तरह से ब्यूटीफुल करेगा जितना आपका अंदर ब्यूटीफुल है. दैट्स वाई आई थॉट दैट लेट्स वर्क ऑन अ बुक कि मेरी स्टोरी बाहर जाए, हाउ आई चेंज्ड माई लाइफ from a girl from a small town to now doing corporate trainings. So I just thought that the message should go out in the world. Wow, that's so powerful. And नाम कहाँ से आया? Commit to yourself. Yeah. इसका मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूँगी. पहले बुक का नाम था I Before You. Okay. And हमने ब्रेनस्टॉर्म किया क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से भी और ये भी कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि बहुत ही सेल्फिश चीज़ है. I Before You. Okay. So commit to yourself, मेरे एडिटर और हम सब ने जब ब्रेनस्टॉर्म किया, so that's how the book title came in. तो मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं लूँगी. The editing team also and everybody brainstormed and said commit to yourself. कि खुद के साथ कमिटमेंट कैसा होता है ना राकेश, जब आप किसी कोई हमें अगर कोई प्रॉमिस करता है कि हम करेंगे, जब वो प्रॉमिस कीप नहीं करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, और हम रोज अपने साथ प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हैं. तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज बेस्ट फिटेड दैट कमिट टू योरसेल्फ. And here means if you are not following our promises, our confidence get hit and Yes. badly hit. Yes. So let's discuss about the confidence, because I could feel many people have their very good potential in their life, in their corporate. बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनती हैं, but that confidence is not there in corporates. So how you help corporate executives to build that confidence? सबसे पहला तो है कि not all leaders are confident all the time. Confidence is not something that we are born with, or is it? We are born with confidence. अगर आप बच्चे को देखो, उसको अपनी नीड्स पता होती हैं, क्या चाहिए, रोना है खाना मिल जाएगा. तो आई थिंक एक नैरेटिव, इट्स अ मिथ दैट कुछ लोग
के पास कॉन्फिडेंस होता है और कुछ के साथ नहीं. तो इनहेरेंट हमारे पास कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस इज सिचुएशनल. कुछ सिचुएशंस में आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है. तो सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का है, कॉन्फिडेंस इज द विलिंगनेस टू ट्राई. Willingness to try. Okay. एक एक्शन लेना. और ऐसे ही बिल्ड होता है. अगर आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहले ही कैसा होता है, मसल लोगों को कई लगता है नहीं नहीं हो नहीं पाएगा. तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, आपके पेरेंट्स या गार्जियन आपको पीछे से पकड़ के और चलवाते हैं. फिर जब आप चलते हो तो छोड़ भी देते हैं पेरेंट्स. और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप आगे जाके गिर जाते हो और फिर पेरेंट्स फिर से भागते भागते होते कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, गेट अप गेट अप गेट अप. तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो जब आप गिरते भी हो तो आपको शर्म महसूस नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. बच्चे भी अरे कुछ नहीं हुआ, यू आर स्ट्रॉन्ग, और आप उठते हो और फिर से साइकिल चलाते हो. फिर से अब आपके पेरेंट्स थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं. और क्योंकि आप 2-3 बार गिर चुके हो, लेकिन आपने अपनी विलिंगनेस टू ट्राई नहीं छोड़ी है, फिर पेरेंट्स दूर से देख के कर रहे होते हैं कि देखो इसने अपनी जर्नी कर ली. फिर आप गिरते हो, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद उठ के हम आगे बढ़ सकते हैं. तो मेरे लिए साइकिल चलाना, या अब जैसे गाड़ी चलाना है, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी तो मैं अपने ब्लॉक में ही चलाती थी बस. मुझे लगता था सड़क पे लेके नहीं जा सकती मैं. और अब तो ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, तब मेरे पास गियर वाली कार थी. तो मुझे लगता था कि अगर ऐसे स्लोप पे गई और रेस भी देनी है, ये भी कैसे करना है. बट अपने ब्लॉक में पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, फिर सड़क पे लेके गई, फिर हाईवे पे लेके गई. तो आई थिंक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जो होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं. और इसका कोई एक ऐसा पाथ नहीं है कि these are the 1 2 3 4 steps, right? हर एक के लिए एक स्टोरी होती है जो हम अपने आप को बताते हैं. आई कांट. तो मैं बोलती हूँ कि आई कांट को आप आई कैन कैसे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कांट स्पीक इन पब्लिक. अपने आप से पूछना, व्हाट इज द इजीएस्ट फर्स्ट स्टेप आई कैन टेक. सो द इजियर फर्स्ट स्टेप इज आई कैन टॉक इन फैमिली गैदरिंग्स. तो मैंने वहां एटलीस्ट विद क्लोज फ्रेंड. या तो आई थिंक वो चीज़ है कि आप अगर बैठे रहेंगे ना कंफर्ट जोन में तो कुछ नहीं होगा. आपको वो विलिंगनेस होनी चाहिए. इट्स लाइक कॉन्फिडेंस इज लाइक फर्टिलाइजर. जितना खाद डालते रहेंगे पेड़ बढ़ता रहेगा, बट फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है. तो इट्स जस्ट विलिंगनेस टू टेक एन एक्शन. ये बहुत ही प्यारा बताया आपने. दैट एटॉमिक हैबिट्स में ही बोला है, दैट माइन्यूट छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए. सो मेरे पास में बहुत कोचेज आते हैं, पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करना है. तो मैं उनको सबसे पहला स्टेप यही बोलता हूँ, यू स्टार्ट सेंडिंग ऑडियो मैसेज टू योर फैमिली मेम्बर. यस. आप उनको ऑडियो मैसेज भेजिए इंस्टेड ऑफ टाइपिंग. अरे ऑडियो मैसेज, हाँ वो तो भेज सकते हो ना, आपने कभी तो भेजा भी होगा. एंड देन आई टोल्ड देम कि एवरी डे 7 डे आपको अपने दोस्तों को सिर्फ ऑडियो मैसेज ही भेजना है. And from there, now they have started podcasting and all. So how powerful is that? So Nancy, I'm enjoying the conversation, and we are going so deep. And let's have some very deep conversation about your long journey, 20 years career in job also, and then now entrepreneurship also. If I ask you, what are the top 3 learnings of this whole journey? What would that be? Is that failure is not final. Failure is not final. Wow. That's my first learning. That जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, जब आप फ्लाइट टेक ऑफ में करते हो, आजकल तो काफ़ी टर्बुलेंस हो रही है. आपको पता है, अनलेस अनटिल की बहुत ही वो है, तो आपको पता है ये क्लाउड्स जो हैं क्लियर होंगे. अभी 15 मिनट बाद नहीं, बट 20 मिनट बाद. और सबसे ज़्यादा फ्यूल कब लगता है? जब आप टेक ऑफ करते हो. तो लाइफ में जब आप कुछ नया स्टार्ट करोगे बहुत एनर्जी लगती है, बट अपने आप को समझाना कि ये फर्स्ट स्टेप है तो इसलिए एनर्जी लग रही है. जैसे फ्लाइट में सबसे ज़्यादा फ्यूल टेक ऑफ के टाइम लगता है और फिर कम लगता है. तो पहला तो वही है कि नथिंग इज़ फाइनल. हर कुछ टेम्परेरी है. एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी. आज अगर पेन आई है तो ये भी टेम्परेरी, ये भी चली जाएगी. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने देखा है कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन. कनेक्शन, ओके. आप लोगों के साथ अगर कोलैबोरेट करना चाहते हो तो पहले कनेक्ट करो जहाँ पे आप दोनों एक लेवल पे हो. करेक्शन बाद में. हम कैसे करते हैं, हम कई बार आई विश द बेस्ट फॉर यू, कैन आई गिव यू फीडबैक. पहले एक कनेक्शन लेवल पे आइए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आइए, तो लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं. ये मेरी लर्निंग रही है, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग में भी मैं देखती थी कि मुझे सच में आई वांट टू हेल्प दैट पर्सन. एंड मेंटरशिप स्पेस पे अगर खड़े हो एंड यू वांट टू गिव एडवाइस टू पीपल, तो इमीडिएटली लगता है इनकी बेस्ट में चाहती हूँ ना, इनको एडवाइस दे दूँ. चेक द विलिंगनेस कि वो सच में सुनना चाहते हैं कि नहीं, या आप ही आ गए हो अपना एडवाइस देने के लिए. और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप लाइफ में चाहते हो ना किसी और से, वो आप खुद बन जाओ. अगर आपको लव चाहिए और तो
आप लव और दो दुनिया में। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छे से सुने तो आप ऐसे सुनो जैसे कि लिसनिंग गिफ्ट हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गुस्सा ना करें बहुत ज़्यादा, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है लोगों का, तो आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे काम करो। तो ये मेरी 3 लर्निंग्स रही हैं। आई समटाइम्स मेस अप, बट ये मुझे पता है फर्स्ट लेसन फिर से वापस आ जाता है, दिस इज नॉट फाइनल। This is not final. So, we are at the end of our podcast. Let me ask you this question that you are into entrepreneur journey from last 13 years, and people say entrepreneurship is hard, very rough. You have to be there 24/7. So, what's your take on this? सच अ डीप क्वेश्चन। आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप ना एक बैम्बू ट्री की तरह होती है। चाइनीज बैम्बू ट्री होता है ना, आपने देखा होगा। उसमें क्या है कि पहले 4 साल इफ यू वाटरिंग द बैम्बू ट्री वो एकदम ग्रो नहीं होता, Okay. और 4 साल के बाद Soil के अंदर ही रहता सॉइल के अंदर ही रहता है। Okay. थोड़े थोड़े वो अपनी रूट्स को पक्का कर रहा होता है, Okay. और एकदम से ऐसे ग्रोथ होती है 4 साल के बाद कि एकदम बैम्बू ट्री इतना बड़ा हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसी है। शुरू में ना आपको लगेगा कि इतने एफर्ट कर रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, हम इतने प्रपोजल्स भेज रहे हैं, सिर्फ एक आधे पे हाँ क्यों हो रहा है, इतना ही मनी क्यों आ रहा है। और वो आप समझिए कि आप अपनी जो रिजेक्शंस हैं, इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन। Redirection. Okay. बिल्कुल, तो वो आपकी रूट स्ट्रांग हो रही हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को एक बैम्बू ट्री की तरह देखो कि वो एंकर इतना स्ट्रांग हो रहा है कि अगर वो मजबूती है तो आगे जो फेलियर्स आएंगे या जो भी जर्नी आएगी, आपको पता है कि इसका रिपल ही होने वाला है। तो एक एंटरप्रेन्योर को मैं यही कहूँगी कि शुरू के साल आपकी पकड़ मजबूत रखने के लिए होते हैं। डोंट लूज फेथ। आपको बहुत सारे लोग आके बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा तो उस मोमेंट पे अपने आप से बोलना कि हम कर लेंगे, Okay. ये भी कर लेंगे। So, जब अब बार बार बोल रहे हो 4 साल, तो मेरे को पॉडकास्ट के लिए 4 साल हो चुके हैं। ओह, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। So, अब वो बैम्बू ट्री बाहर आने वाला है। बिल्कुल, ऑलरेडी आ रहा है, आ रहा है। यस एब्सोल्युटली। So empowering and so grateful. And so this is my second last question that we have talked about entrepreneurship, hard hota hai. So, but how you are managing work, life? क्या टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हो या फिर प्रोडक्टिविटी टूल्स, एंड हाउ यू मैनेज पेरेंटिंग, देन वर्क, एंड देन लाइफ, फैमिली, एंड देन सब कैसे मैनेज कर पाते हो? आर यू यूजिंग एनी टूल टाइम मैनेजमेंट के लिए, या फिर क्या गुरु मंत्र है? आई विश आई हैड अ स्ट्रेट आंसर टू दैट। देयर आर डेज व्हेन आई एम हैप्पी। एक तो मेरे को जो वर्क लाइफ बैलेंस वर्ड है ना, उससे थोड़ा सा मुझे एलर्जी है। मुझे लगता है वर्क लाइफ हार्मनी होती है। जैसे कि कुछ डेज होते हैं जब मैं फुल डे ट्रेनिंग में हूँ, तो आई एम नॉट गिविंग लाइक फुल डे टू माई पेरेंट्स और माई डॉटर और माई हस्बैंड। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक सेंटर होके क्वेश्चन, आप अपना दिन शुरुआत करके अपने आप से पूछें वो 3 चीज़ें क्या हैं जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में देना चाहूँगी, प्रोफेशनल लाइफ में देना चाहूँगी और सोशल लाइफ में देना चाहूँगी। अगर ट्रेनिंग का ब्रेक हुआ है, विच फ्रेंड आई कैन गेट इन टच, या अपनी डॉटर को कॉल कर सकती हूँ। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैंने देखा है कि अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो और उस मोमेंट पे आप पूरे प्रेजेंट हो, दैट्स व्हाट आई वुड कॉल क्वालिटी टाइम एंड वर्क लाइफ सिनर्जी। दूसरी चीज़ है कि अपने आप से पूछना कि जो हम कर रहे हैं वो अपने आप से आ रहा है या एक भेड़चाल में चल रहे हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी वांट्स टू स्केल अप। तो आई थिंक वो भी है। बर्न आउट हो रहा है तो क्या आप उसको कैसे कर रहे हैं। और मेरा एक लाइफ में मंत्र है कि सारे, स्पेशली विमेन को लगता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है कि सारे चीज़ों के सोल्यूशंस मुझे ही आने चाहिए। मेरा मंत्र ये रहता है कि अगर मैं अपनी डॉटर के साथ और क्वालिटी टाइम या कुछ चाहती हूँ लाइफ में और बेटर, मैं उससे पूछती हूँ हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट बेटर टुवर्ड्स आवर बॉन्ड। आई आस्क माई हस्बैंड टेल मी, rather than I'm only thinking oh my god, the person will tell you. And also how can you contribute, this is what I need. तो I think awareness रखना कि ना सिर्फ मुझे contribute करना है, I am also a receiver, I can be a giver and receiver. और tools I think यही है कि कुछ चीज़ें अगर आप automate कर सकते हो, कैलेंडर पे अपना कैलेंडर वो कर सकते हो, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ डेलीगेट अगर कर सकते हो। कई बार हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं कि नहीं कर ही लेंगे ना, 10 मिनट ही लगते हैं या आधा घंटा ही तो लग रहा है। वो आधा घंटा रोज आधा घंटा लग के आपके कितने और चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपके पैशन है आप उसमें स्पेंड कर सकते हो। तो आई थिंक अपने आप से पूछना कि हे आर यू बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ, व्हाट कैन यू लेट गो, पकड़ के नहीं रखना है, एंड देन लाइफ
चल पड़ती है ठीक चल ठाक। पड़ती है। वही आपको देख के ऐसा लगता है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी एंड कैन बी डन। मैं ये कहूँगी कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, है ना, कि आई थिंक नज़रिया है। इजी और डिफ़िकल्ट भी एक माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल, जब आप फ्लाइट लेते हो और टर्बुलेंस होती है तो आप अपने आप को समझा लेते हो कि थोड़ी देर बाद ये चली जाएगी। यस, या अगर लाइफ में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने आप को समझा लेते हो आज नहीं मिली है, कल मिल जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम एक अच्छा वो करो कि जिस दिन मैं सैड हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल हैव एवरीथिंग टुगेदर। मुझे कई लोग बोलते हैं ये कि सेशन के बाद भी आप तो खुद को ही कोच कर लेते होगे ना। एक डॉक्टर को भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, राइट? तो आई थिंक वो अपने आप को बोलना कि आई कैन हैव रिसोर्सेज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो टू सपोर्ट मी, आई थिंक वो ईजी बना देते हैं कि व्हेन आई फील दैट आई एम डाउन एंड ऑल, लाइफ बिल्कुल रफ पैच में चल रही है, तो आई विल कॉल माई फ्रेंड एंड आई से कि आई एम ह्यूमन एंड आई डोंट हैव इट टुगेदर टुडे, कैन यू जस्ट लिसन टू मी? एंड आई थिंक चल पड़ती है फिर लाइफ। So this was the coming question is my last question, and it's so amazing to talk to you and listen to your with the flow of words, with the simple, and we have talked about past, present. Let me take you to the future because I always ask people that ठीक है, future में आप क्या करना चाह रहे हो, 5 साल में कहाँ देखते हो? But I have framed it something like this that. Running this podcast from last 4 years, 100 plus episodes. It is like miracle for me. I have never thought that 5 years before that I was having a podcast, Right. and then I will reach 20, 50, 100 episode. So it is like a miracle for me. Miracle do happen. MDH movement. Yes. That I have shared. This is like MDH movement for me, shooting here in the studio first time. And you are coming from Pune and we are having this podcast in the morning. It is like MDH movement. I have never thought of this. It happened. So what will be your MDH movement in the next 2-3 years? One is like you said, it's also, I never thought that from Pune I'll come and record this. So I think this is also MDH moment for me. And from here on, my passion is that how can I contribute and to the world that I would like to live in. So when people say, schools में क्यों नहीं सिखाते आप ये? You know, when I go and train corporate employees, say, because स्कूल में सिखा, अब तो हम पक्के हो गए हैं, आपको ये स्कूल में सिखाना चाहिए। Rigid हो गए हैं, Rigid हो गए, अब तो बड़ा मुश्किल है बदलना है, स्कूल में क्यों नहीं सिखाया गया? तो taking, rather than saying कि आप करिए ना कुछ, I am taking it as a challenge. Now I'm starting programs in school where people really understand all these skills. And second is I'm working on another book, तो वो plan में चल रहा है. And third is to collaborate with other people so that it's not just my journey. There are other people who become equal stakeholders because I can do so much. और जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं ना तो वो एक आर्मी बन जाती है और फिर उसका जो इफेक्ट होता है, that's a revolution. That's what I have in store for myself. Wow, Rakesh. that's great, and all the best for the next book. Thank you so much. It was such a pleasure interacting with you. So that was my last question, and thank you, Nancy, for coming on the show and sharing your wisdom, sharing your knowledge so authentically and so with the flow. It was, the conversation was with so flow, with free flow. So thank you very much. Thank you. I'm grateful for that. Thank you so much for having me at this awesome location. It was a pleasure interacting with you, Rakesh. Thank you. Thank you.